ون ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔ وہ تعلقات قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ مسئلہ فلسطین پر کوئی دیرپا اور مستقل حل نہ نکل سکے۔ میں نے انہیں پاکستان کی عوام کے جذبات اور فلسطین اور کشمیر کے مسئلے میں جو مماثلت ہے ان سے آگاہ کیا، اور آپ کو یہ سن کر اطمینان ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے موقف کو پوری طرح سمجھا۔ اور یہ آپ کا سوال اتنا پرانا ہو چکا ہے اور اس کا جواب اتنا واضح ہو چکا ہے، وزیر اعظم دے چکے ہیں، میں عرض کر چکا ہوں، دفتر خارجہ کا بیان آ چکا ہے کہ ہم پر کسی کا پریشر نہیں ہے۔ آپ کو اطمینان کب ہوگا اور کیسے ہوگا مجھے بتا دیجئے، میں انہی الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، نہ ہے۔ نمبر 2، ہم نے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے ہیں، کسی دباؤ کے تحت نہیں کرنے۔ ہماری ایک پالیسی ہے اور ہم اس اپنی پالیسی پر آج بھی قائم ہیں۔ جی اچھا شاہ صاحب، بھارت جو ہے اس نے یو این کی گاڑیوں پہ بھی حملہ کیا اور فالس آپریشن کے لیے کچھ ممالک سے بھی کہہ رہے اجازت مانگ رہا ہے۔ اگر وہ اس طرح کا کچھ اقدام کرتے ہیں تو پاکستان کس طرح جواب دے گا؟ بھارت نے ہمیشہ کوشش کی ہے، پاکستان کو جب بھی موقع ملا زخم پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ پچھلے دنوں میں، بلکہ میں تاریخ بتا دیتا ہوں، 14 نومبر کو دفتر خارجہ میں میں نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ڈوسیئر قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھا، جس ڈوسیئر میں ہم نے ثبوتوں کے ساتھ، irrefutable ایویڈنس جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ دنیا کو باور کرایا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ وہ ایسے عناصر کی پشت پناہی کرتا ہے، ان کو مٹیریل فراہم کرتا ہے، ان کو فائنینشیل ایڈ پرووائڈ کرتا ہے، انہوں نے اپنی سرزمین میں کیمپس قائم کر رکھے ہیں، اور گرد و نواح ان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ڈوسیئر ہم نے P5 کے ممالک کے ساتھ، سلامتی کونسل کے جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں ان کے ساتھ، OIC کے جو اہم ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کر دیے ہیں، اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی خدمت میں اپنے ڈوسیئر کے جو اہم نکات ہیں ان کی خدمت میں بھی پیش کر دیے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں یورپین یونین نے، آپ گفتگو بند کریں گے میں بات کر لوں، یورپین یونین نے ایک EU ڈس انفو لیب کے انکشافات اور رپورٹ شائع کی ہے، جس کو انڈین کرونیکل کے نام سے دنیا میں آج جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں ثابت ہو گیا ہے کہ بھارت جعلی NGOs کے ذریعے، جعلی سوشل میڈیا پہ ویب سائٹس کے ذریعے اور جعلی انفارمل پارلیمنٹری گروپس کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی، پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ ان کی ایک طویل منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے، جو اب بے نقاب ہو گئی ہے۔ پاکستان نے نہیں کی، یورپین یونین نے کی ہے، اور وہ مزید تحقیقات کر رہی ہیں۔ بھارت کا اصلی چہرہ اس ڈوسیئر کے ذریعے اور انڈین کرونیکلز کے ذریعے بے نقاب ہو گیا۔ اب یہ بھی ہماری اطلاعات ہیں، اور میرے ساتھ پاکستان کی جو انٹیلیجنس انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے معلومات شیئر کی ہیں، اور میں ابوظہبی میں تھا جب میری گفتگو ہوئی اور نئی اطلاعات مجھے موصول ہوئیں، تو میں نے فی الفور موقع ضائع کیے بغیر وہیں ابوظہبی میں ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا بھارت کو ایک واضح پیغام دینا، اور بھارت کو واضح پیغام یہ تھا
कि जो आप करना चाह रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाना जो आप तलाश कर रहे हैं, हमारे इल्म में है। हमारे इल्म में आपकी इतलात से ज़्यादा मालूमात हैं। आप ये अहमकाना हरकत न कीजिए। अगर आपने कोई ऐसी हरकत की तो हम बाखबर भी हैं और हम उसका फिल फौर और मौसर जवाब देने की अहलियत भी रखते हैं। अगर आपने ऐसी हरकत की तो इससे इस खित्ते का अमन व इस्तेकाम मुतासर होगा और दुनिया को उसका नोटिस लेना चाहिए कि एक एटमी कुव्वत गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से अगर दुनिया को एक क्राइसिस में मुब्तला करती है तो उसे इसका नोटिस लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को, सलामती काउंसिल को उसका नोटिस लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ कर चुका कि हमारा एक्शन फौरी होगा और अगर अफ़गानिस्तान का अमल मुतासर होता है और इस खित्ते की पीस एंड सिक्योरिटी मुतासर होती है तो उसका ज़िम्मेदार भारत होगा, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी अमन और इस्तेकाम की है। हम जंग या बेजा खून खराबा हरगिज़ नहीं चाहते। आप जानते हैं कि आए दिन वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करते हैं और आज से 2 दिन पहले उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जो उनके ऑब्ज़र्वर्स हैं उनको भी निशाना बनाया। वज़ीर आज़म का भी कल मौक़िफ़ आ चुका है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपना पैगाम दिया है और दुनिया से भी वो मुखातिब थे। जी, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारत जो करना चाह रहा है हम उससे गाफिल नहीं हैं। उसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि कौम मुत्तहिद हो। मुझे ज़रा बात करने का मौका दीजिए ना। आपने सवाल किया, जवाब अपनी मर्ज़ी का ना लीजिए ना, मेरा जवाब लीजिए। हमें इल्म है कि वो क्या करना चाह रहा है और अगर हम गाफिल नहीं हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो इन हरकतों से बाज रहे और अगर उनने कोई ऐसी हरकत की तो उन्हें फिल फौर जवाब मिलेगा और हम दुनिया को बता चुके हैं। ठीक। अच्छा शाह साहब, 31 दिसंबर आने वाली है लेकिन पीडीएम की जानिब से अभी तो क़यादत को भी इस्तीफे नहीं दिए गए, तो क्या समझते हैं कहाँ तहरीक इनकी जाएगी? देखिए, पीडीएम, मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है दुनिया में, आपने देखा और आपकी ये ख़बर नज़र से गुजरी होगी कि बरतानिया ने, जर्मनी ने और बहुत से ममालिक ने अपने SOPs को फिर रिवाइज़ कर रहे हैं। बहुत से यूरोपियन मुल्क जो हैं, क्योंकि ये जो वायरस है म्यूटेट कर रहा है, एक नई शक्ल अख्तियार कर रहा है और पहले से ज़्यादा ये ख़तरनाक होता जा रहा है, बहुत से मुल्कों ने अपना फ़्लाइट शेड्यूल जो है उसको रिवाइज़ करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग हो नहीं सकता। मेरी गुजारिश ये है कि कोरोना की सूरत हाल को सामने रखते हुए और जो भारत की तरफ से हमें इतलात मिली हैं उनको सामने रखते हुए पीडीएम की क़यादत को अपने सियासी एजेंडे से हटकर नेशनल एजेंडे पर सोचना चाहिए। नेशनल एजेंडे के तकाजे क्या हैं, उन्हें उस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। उन्हें अपने मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। नंबर 1 मेरी गुजारिश है। मैं समझता हूं कि हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि ये जलसे बेसूद हैं, न कीजिए। और आपने देखा, चाहे मुल्तान था, चाहे पेशावर था, कराची था, क्वेटा था और फिर लाहौर ने तो उस पर मोहर लगा दी कि आवाम वाज़ेह तौर पर कह रही है कि हम इस अमल का हिस्सा नहीं होंगे। हाँ, उनके वर्कर्स थे, वर्कर्स जहाँ क़यादत कहेगी पहुँचते हैं और वो पहुँचे। एक महदूद तादाद में लोग मौजूद थे,
लेकिन आवाम की पजीराई उनको हासिल नहीं हुई। जब आवाम की पजीराई भी हासिल नहीं हो रही और वबा भी फैल रही है, हिंदुस्तान से इस किस्म के धमकियां भी आ रही हैं, इस किस्म के खदशात भी हैं, तो वो पाकिस्तानी हैं और उन्हें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ तक इस्तीफ़ों का सवाल है, इनकी सफ़ों में इंतशार है। पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देना चाहती, मैं वाज़े तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि उनके एक रहनुमा का बयान है कि ज़िमनी इंतखाबात में हम भरपूर हिस्सा लेंगे। जब उनसे सवाल किया गया कि पीडीएम का फ़ैसला है इस्तीफ़े देने का, तो फिर आप अगर असेंबलियों से जो मौजूदा मेंबरान हैं वो इस्तीफ़े दे रहे हैं, तो नए इंतखाबात का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं? तो जवाब आया कि वो फ़ैसला पीडीएम का है, पीपल्स पार्टी का नहीं। तो मेरा सवाल पीपल्स पार्टी की क़यादत से है, क्या आप पीडीएम का हिस्सा हैं या नहीं? अगर हिस्सा हैं तो पासदारी कीजिए, और अगर आप उनके इस मौक़िफ़ से इख्तलाफ रखते हैं तो खुल के बयान कीजिए और इस्तीफ़ों से लाताल्लुकी का ऐलान कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक PMLN का ताल्लुक़ है, उनके अंदर 2 वाज़े धड़े हैं। एक धड़ा है जो इस्तीफ़ों का ख्वाहिशमंद है, और उतना ही मौसर धड़ा है जो समझता है कि इससे उनकी जमात को फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। इस वक्त पीडीएम के अंदर इस्तीफ़ों के मामले पर यकसुई नहीं है, इंतशार है, और मुझे लगता है ये इस्तीफ़े नहीं देंगे। हाँ, अगर इस्तीफ़ा वो देना चाहते हैं, उन्होंने 31 दिसंबर की तारीख दे रखी है। अगर आप संजीदा हैं, पीडीएम की क़यादत अगर संजीदा है, तो फिर मैं उनसे कहता हूं कि 31 तारीख तक अपने इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली को और मुत्तल्लिका सूबाई असम्बली के स्पीकरों को पहुंचा दे, अगर संजीदा है। और अगर संजीदा नहीं है तो कौम को गुमराह न करें। थैंक यू। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।